Hello, hello students, and good morning to all of you. And this is a continuation of Income Tax Law and Practices Unit 4, topic of computation of income under the head of capital gains. Section 45 to 55. This is lecture 3, part 3 of that particular session. And in my first session, I discussed with you these things: chargeability of income under capital gains, definition of capital assets, section 2, what definition of transfer, section 2, section 1, short-term and long-term capital gains. And lecture 2, part 2 में हमने discuss किया कि computation of capital gains, cost of acquisition, cost of improvement. Now I am going to discuss the cases of long-term capital assets not subject to indexation and cases, special cases of computation of capital gains, slum sale, destruction, and compulsory acquisition. So 2 things are discussed in that particular things. So I hope you will be able to understand. Thank you, and go through that. So this is the first thing, computation of capital gains. हाँ, तो in certain cases हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, insurance compensation or damage is a section of capital assets, section 45, subsection 1 में आता है. Overriding section है, where any person receive at any during previous year any amount of assets under the insurance from the insurer. तो on account of damage, किस टाइप से damage हो, food flood हो, typhoon हो, cyclone, earthquake हो, या idea of civil engine destruction हो, एक्सीडेंट या फायर एक्सप्लोजन हो, एनिमी एक्शन हो, ठीक है, कोई भी चीज है तो कैपिटल गेन्स शैल बी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ सच पर्सन. जो भी कैपिटल गेन्स आपको होगा वो चार्जेबल माना जाएगा इन प्रीवियस ईयर विच मनी और अदर असेट्स इज रिसीव्ड. ठीक है, तो कोई भी मनी या पैसा जो भी आपको मिला वो देखा जाएगा कि कितना पैसा आपको मिला कैपिटल असेट्स में. यहाँ ध्यान रखना पीरियड ऑफ होल्डिंग है, एक्विजिशन ऑफ डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, फुल वैल्यू of consideration है, value of money plus FMB, fair market value set on date of receipt. Indexation है, previous year holding to previous year destruction आपको देखना है. तो यहाँ पर देखेंगे like Mr. X purchased a building on that 2015 5 में ₹10,000. Building was used for residential purpose and building is destroyed due to the fire on 10/1. ठीक है, 2015 को जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई थी. इंश्योरेंस gives a new building to the assessee of ₹16 lakh. In such case of 20 August 2019, the fair market value of the building is 9 lakh. Compute the capital gains. तो LTCG है जहाँ पर हम देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 2021 में 16,000 lakhs plus 9 lakhs is equal minus 10 lakh into this. इंडेक्सेशन इसका हम निकालेंगे तो इन्फ्लेशन इंडेक्शन 240 एंड ईयर में उस समय ये रहा होगा और डिवाइड बाय दिस जब खरीदी वो उस समय ये रहा. तो 3,76,106 रुपये आपका जो इसमें कैपिटल गेन आपको माना जाएगा और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, इसी टाइप से जो है आप देखेंगे यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, ओवरराइडिंग सेक्शन दिस, where any assessee convert the capital into stock in trade, capital gain arising on the above transfer shall be transferred chargeable on the hands of assessee in previous year in which SIT is sold, otherwise transfer. पॉइंट्स आपको याद रखने. पीरियड ऑफ होल्डिंग है, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ कन्वर्जन एसेट ऑफ एसआईटी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एंड डेट ऑफ कन्वर्जन, प्रीवियस ईयर होल्डिंग ऑफ टू द प्रीवियस कन्वर्जन है, सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन फुल मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू, सेल्स प्राइस मस्ट बी ग्रेटर मार्केट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस. जो भी यहाँ निकल कर आएगा ये सेल्स प्राइस ग्रेटर देन, अगर ये होता है एफएमबी से तो सेल्स प्राइस मैंने एफएमबी इज अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स में चला जाता है, यहाँ नहीं आता है. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, लाइक मिस्टर एक्स परचेज ज्वेलरी आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की 95 में, एफएमबी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो 1/1/2001 को 3 लाख रुपए की थी उसकी. दिस स्टार्ट ज्वेलरी बिजनेस एंड ब्रिंग ज्वेलरी एज ए स्टॉक इन ट्रेड ज्वेलरी बिजनेस. And when the fair market value of jewelry is 18 lakhs, the jewelry is sold of ₹20 lakh, compute the capital gains. तो LTCG है या long term capital gains है for the year of assessment at 2021, 18 lakhs minus 3 lakh into this inflation price upon this 2001 का था, and then we get the 10,38,000 आपका इसमें प्रॉफिट हुआ. बिजनेस इनकम की बात करें 20 lakhs माइनस 18 lakh 2 lakh रुपीज बिजनेस इनकम होगी. तो बिजनेस इनकम अलग है और ये जो है आपका कैपिटल गेन्स अलग चीज है. फिर कैपिटल गेन्स और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी कई बार आप देखते हैं
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वेयर एनी पर्सन और had at any time of during the previous year any beneficial interest by any securities, profit or gains arising from the transfer of any depositories shall be chargeable under the capital gains in previous years. Capital gains shall be taxable in the hands of person having beneficial interest or not hands of the depository who had registered the shareholder. Period of holding cost of calculate the FIFO basis, first in first out basis पे आपको देखना पड़ेगा क्या है. यहाँ देखेंगे मिस्टर एक्स गिव्स द डिटेल ऑफ डीमैट अकाउंट्स 2014 है ना 26 जून को 14 में 120 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज डायरेक्टली इन डिमैटिलाइजेशन ऑफ ₹200 पर शेयर. फिर 15 में इन्होंने खरीदे 80 शेयर्स 120 के हिसाब से. फिर 16 में 100 शेयर्स 100 के हिसाब से और 17 में 200 शेयर्स 150 के हिसाब से. ठीक है, परचेज किए इन्होंने. And he sell 300 shares of X Limited. X Limited के 300 shares इन्होंने बेच दिए. तो X Limited से इन्होंने 200 100 एंड ये खरीदे थे ₹4.800 पर शेयर. तो यहाँ आप देखेंगे LTG 1920 फिगर में आपने देखेंगे पार्टिकुलर से 120 शेयर 100 शेयर और 80 शेयर में 3 बार इन्होंने ये खरीदे थे. तो कुल मिला के 300 शेयर इनके पास बन जाते हैं. तो इनको खरीदा था ये डेट में. फिर 800 के हिसाब से 96,000 80,000 और 64,000. फिर इसका जो चार्जेस हुए वो सब घटाने के बाद आपकी जो वैल्यू बची वो इतने चार्जेस आए इसमें अलग अलग. इसमें आया 18,900 फिर 13,000 इसमें ये आया. फिर इनको इसमें से माइनस किया तो LTG जो है 16,100 this तो अलग अलग जो है गेन आपको मिला. वी हैव इग्नोर्ड 1038 implication of solving the questions. ठीक है, ये ध्यान रखना है. इसके अलावा कैपिटल गेन्स और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स फ्रॉम द सेक्शन 45. कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स टू फर्म. ठीक है, वेयर पर्सन ट्रांसफर कैपिटल असेट्स टू फर्म or AOP or BOI in which or any partner or business or member by way of capital construction, contribution or otherwise shall be chargeable to capital gain in the hands of such person in the previous year of. Then point is to be discussed and the rate of action और ये सबको ध्यान रखना है. and fair value market value आपको निकालनी है like this. Mr. X become a partner of partnership firm है ना, and he has transferred the capital assets on that capital contribution to the firm, and the capital asset was acquired Mr. X on this 2002 1 lakh, and the firm record the assets of 5 lakh in the books. The firm market value is 1,50,000. Put the capital gain. तो मिस्टर एक्स के हैंड्स की अगर हम बात करें 2021 में 5 लाख की थी वैल्यू. ठीक है, क्योंकि 5 लाख दिखाया गया था. 1 लाख रुपीज उसका माइनस किया तो उसका इंडेक्शन प्राइस निकाला 2,11,000 रुपये आपकी जो उसको कैपिटल गेन था वो हुआ. इसी हिसाब से कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म. फर्म के रिजोल्यूशन अगर हम करते हैं तो भी वेयर अ फर्म AOP or BOI transfer the capital asset by way of distribution of the its partners or member on its resolution or otherwise shall be chargeable. जो भी पार्ट्स हैं वो सब चार्जेबल होंगे है ना कैपिटल गेन सच फर्म. एंड देखना है आपको फर्म का जो वैल्यू है वो भी ऐसी आएगी. ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं. XYZ आर द 3 पार्टनर ऑफ मिस्टर XYZ पार्टनरशिप फर्म ऑन 10th March 2020. फर्म डिसॉल्व फॉलोइंग एसेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, जैसे कि लैंड थी वो ये थी, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स थी ये थे, फैक्ट्री बिल्डिंग थी वो इतने की थी. एरिया वैल्यूड एज पर डिसोल्यूशन ये आपको निकला. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये था रिडंडेंट वैल्यू से फिर केवल फैक्ट्री वैल्यू पर लगा. ईयर ऑफ एक्विजिशन 90 95 96 2005 and 6 2003 and 2 and 3. FMB है, फेयर मार्केट वैल्यूज है आपके 3 लाख रुपीज. इसमें सॉल्यूशन देखेंगे तो 1920 ऑल फिगर्स आर गिवन. पीरियड ऑफ होल्डिंग है आपकी 1995 से 96 से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म है. ये शॉर्ट टर्म रहेगा फैक्ट्री का टेकन बाय Z ओनली. तो STG अंडर सेक्शन 50 इसको जो है मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी. फुल मार्केट कंसिडरेशन है 34,60,000 का, इसमें 50,000 का और इसमें 6,50,000 का. लेस इंडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी लॉ कॉस्ट है आपकी वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी 3 लाख का मार्केट वैल्यू से. और यहाँ पर 5,000 रुपये केवल आपका ही रहेगा
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5, ठीक है, 50,000 है, और यहाँ पर ये 6,50,000 जो है 4 लाख रुपए का है, ठीक है। ये आपका दोनों इसको हम निकाल लेंगे। इसका आया आपका 8,87,067, ये 12,03,50 और 4 लाख रुपए है। कैपिटल गेंस जो है इनका, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 25,93,000, यहाँ पर 37,600, और यहाँ पे आपका 2,50,000 रुपये आएगा, जिनको हम टैक्स्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑन एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 45 सेक्शन 5 में है। और तो एनी ओवरराइडिंग सेक्शन दिस कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लॉ और एनी कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर टू बी डिटरमाइन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, एंड इट शैल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन्स, ठीक है, in the previous year, and which compensate a part of their first recipient company. Enhanced compensation भी यहाँ आपको देखना पड़ता है। Reducing compensation, if compulsory is reduced by the court, then the capital gain is usually compensated and recomputation of that. Capital gains of joint development agreement में भी आता है capital gains का, section 45 subsection 5A. Not within saying anything contained in section 45(1), individual or HUF transfer of land or building or both under the specified agreement, capital gains shall be chargeable in which a certain completion and FCV fair value of the consideration and value of acquisition etc. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि any transfer if is project है before the this section does not apply, ठीक है। यहाँ पर 45(5) apply नहीं होगा, and capital gains shall be deemed to be income in previous year in which the transfer taken place. Specified agreement की बात करें तो agreement registered in which the person owning building on both, and then STB standard value means the value adopted of assets CC by any authority or government of the payment of stamp duty, section 49(7), and if the section 45(5)(a) is applicable, cost of acquisition such of assets shall be amount. Then slum sales, section 50B. Slum sale क्या है? तो basically in case of slum sale, profit on such sales shall be chargeable under the capital gains in previous year in which the slum sale is effected, ठीक है। slum sale वो भी chargeable होगी previous year में। section 2 subsection 42C, slum sales क्या है? transfer of one or more undertaking, एक से ज़्यादा जो undertaking है उनको बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं as a result of sale of lump sum consideration, आप इसमें देखते हैं, without value being assigned in individual asset or liability. इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटी को हम वैल्यूड नहीं करते, इसमें स्लम से यानी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस ऑफ अंडरटेकिंग होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ होगा स्लम डील, एंड हाउएवर इफ अंडरटेकिंग एलटीसी नो इंडेक्शन विल बी डन, ठीक है। अगर एलटीसी है तो इंडेक्शन की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वैल्यू एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अंडरटेकिंग। टाइप ऑफ एसेट्स नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगी, बुक वैल्यू पे इसको दिखाएंगे। डेप्रिशिएशन एसेट्स एक्चुअल कॉस्ट मींस forming part of undertaking, less depreciation allowed on that assuming assets only, assets in the block B, ठीक है। ये आप देखेंगे, ब्लॉक उसको देखेंगे। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी आपको करना पड़ेगा, WDV यानी रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स भी आपको यहाँ निकालना है, A-B करेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रॉब्लम है, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स ऑन 31 मार्च एंड लायबिलिटीज है, फिर एसेट्स है, लायबिलिटीज पेड है, कैपिटल रिवेन्यू सरप्लस दिस, क्रेडिटर्स इज दिस, सॉफ्टवेयर डिवीजन इज दिस, इधर बिल्डिंग है, डेटर्स स्टॉक्स हैं, ठीक है। और ये आपका बिल्डिंग है, डेटर्स स्टॉक है, सीमेंट डिवीजन है, सॉफ्टवेयर डिवीजन सीमेंट डिवीजन दोनों का अलग अलग है। तो 8,50,000 8,50,000, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ऑन द 1 अप्रैल 2014-20 मिस्टर एक्स डिसाइड टू सेल द सीमेंट डिवीजन को बेचने का है, विच वाज अप टू द this and the building transfer is slum sale belong to 10% block, the WDV is up to 10% block of 5 lakh and all building belongs to cement division was purchased, ठीक है, on this date 3 lakh cement division है वो परचेज कर ले। determine the tax treatment, यहाँ पर आप देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग है 15/6/12 से 1/4/19 तक, LTC ये हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल की एसेट होगी। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 6 लाख रुपए की है आपकी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 लाख रुपए इसका बनेगा, ये मिला के आपका प्लस ये भी है, तो 6 लाख रुपए इसकी वैल्यू इसकी आपके दिखा रहा है बेचने में, ये है, ठीक है। डिवीजन 6 लाख रुपए का है।
फिर वैल्यू ऑफ असेट्स है 5,06,500, डिबिटेड एड्स हैं, ये भी स्टॉक है, बिल्डिंग है, तो ये आपको 3,06,500 रुपये बना। लेस डेप्रिसिएशन 5% फॉर द असेसमेंट ईयर, 10% फॉर द दिस, ये लेस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स हैं आपके 2 लाख के, ये माइनस हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल 2,93,500 होगा इसका। तो इस टाइप से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी भी होती है कई बार, तो उसमें भी टैक्सेबल होता है सेक्शन 51 में। अमाउंट फॉरफिटेड अप टू 31 मार्च 2014 अगर आपने किया है तो वेयर एनी कैपिटल असेट्स, वेयर एनी प्रोविजन occasion subject matter of negligence or transfer any advance or other received by SSC is forfeited by him, so then such amount shall be deducted from the cost of action and capital. Amount forfeiture of this date, section 56 subsection 2, advance or other money forfeited will be included in income of the recipient under the head of other sources. And provisional section 51 में दिया है, तो forfeited amount is include in the income previous year, section 56, and then such sum shall not be included in that terms. अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इन लिक्विडेशन भी इसमें आता है, और राइटिंग सेक्शन 45 करता है ओवरराइड, where any asset of a company is distributed to shareholder on its liquidation, such distribution will not be charges or regarded as transfer. ठीक है, वो भी ट्रांसफर नहीं होता है, इसको हमें ध्यान देना होगा। And any capital gains on purchase of company, it's on share or specified period by way of section 45, 46 ए में ये चला आता है। कोई भी कंपनी अगर शेयर holder or other holder has securities and receive any consideration from the company of or purchase of its own shares shall be chargeable or capital gains, उसको भी charge में माना जाता है capital gains में। So all these things has come under that session and I hope you understand. Thank you very much.